Dear students, I am Ms. Rimsha from Step School Kamuki campus, your English teacher. In today's lesson, we will learn about unit number 2. The topic name is party time. In this lesson, we will learn about how to make invitation cards for party and how to make a pizza for party. So watch and listen this video careful, that will be helpful to achieve our objectives. So I have pasted the image of your textbook page number 29, Clara's birthday party. Clara will be 6 on her birthday. Her mother has said she can have a party. Clara is very excited. Mom says she can help to get things ready for the party. Together they have made a list of things to do. लाइक क्लारा एक लड़की है जो कि 6 इयर्स की है और उसकी बर्थडे है। तो उसकी मदर उसके लिए पार्टी अरेंज करने जा रही हैं, तो वो क्लारा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लिस्ट बनाएंगे पार्टी के लिए कि उन्होंने उसमें क्या क्या करना है। पार्टी टू डू लिस्ट, राइट इन्विटेशंस, डेकोरेट हाउस, बाय पार्टी फूड, मेक पिज़्ज़ाज। अब उन्होंने एक लिस्ट बना ली कि जिस जिसको पार्टी पे उन्होंने इनवाइट करना है उनके नेम्स। फिर डेकोरेशन के लिए उन्होंने हाउस की डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है वो उन्होंने राइट कर ली, लिस्ट बना ली। पार्टी के लिए फ़ूड कौन कौन सा बाय करना है, फिर पिज़्ज़ाज बनाने हैं, ठीक है। और डिफरेंट उन्होंने गेम्स चूज़ की पार्टी के लिए। So this is the invitation of Clara's birthday party. Please come to my birthday party when मतलब कब वो बुला रही हैं 2 PM सैटरडे को ऑन 1 February, ठीक है। वेयर जगह कौन सी है, 47 पार्क लेन, ठीक है। वो जगह भी बता देती है, टाइम भी बता देती है, डेट भी बता देती है, क्या इनविटेशन जो उसने लिस्ट में लिखा था कि किस किस को इनवाइट करना है। So this is your home task number 1. You have to solve part A on your English notebook, page number 31 of your textbook. You have to just solve the first two questions of part A, read and respond. What time does the party start? Party कितने बजे start हुई थी? Where is the party? Write it down कि party कहाँ हुई थी। Simple है, आपको उसी invitation में से ही इसके answers मिल जाएंगे। Now we will discuss about the non-fiction reading, that is real, how to make a pizza. Here is the recipe to make pizza. I have added the page number 32 of your textbook. You will need one pizza base, tomato paste, 400 grams of mozzarella cheese, 2 fresh tomatoes, fresh olives, 1 red pepper and handful of fresh basil leaves. आप मस्ट इसको ट्राई करिएगा, ये सारी चीज़ें आप लेके और फिर आपने इसको बनाने की ट्राई करनी है, बनाना है इसको पिज़्ज़ा को इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद। After collecting the material or items for making pizza, आपने step by step you have to follow the instructions. Preheat oven, ask an adult to preheat the oven. आपने oven को चलाना है, ठीक है। देन आपने टोमेटो स्प्रेड कर देना है पेस्ट ओवर द पिज़्ज़ा बेस के साथ और आपने चीज़ ऐड कर देनी है, टॉपिंग ऐड कर देनी है, ठीक है। देन आपने स्प्रिंकल बेसिस जो होती हैं वो आपने स्प्रिंकल कर देनी है और उसके बाद आपका पिज़्ज़ा आफ्टर 10 मिनट्स आपने उसको रखना है मेल्ट होने के लिए। जो चीज़ें आपने ऊपर लगाई हैं उनको मेल्ट होने के लिए आपको 10 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस टू मेक पिज़्ज़ा। Here are the glossary words. Spread means to make a thin layer of something. कोई किसी चीज़ की एक थिन लेयर बना देना, फैला देना। स्प्रिंकल मीन्स टू पुट टाइनी अमाउंट्स ओवर समथिंग, मतलब जो चीज़ हम ऊपर से किसी किसी की कोई भी चीज़ जो है अमाउंट छोटी छोटी जो है उसकी हम गिराते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, तो उसको हम टू पुट टाइनी अमाउंट्स ओवर समथिंग बोलते हैं। Also, this is your home task. You have to solve part A on English notebook. First one, how many grams of mozzarella cheese are needed for the pizza? And second question is about how many people does this recipe feed? Write it down. You have to solve these two questions on your English notebook. Let's talk about what are and adverbs. Those words that end with ly
tells us how something is done. They are called as verbs because they add something to the verb. कोई वर्ड है मोस्टली जिनके एंड पे एल वाई आता है, वो वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जो है वो वर्ब के रिलेटेड बता रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड है थिन और थिनली, स्लाइस द चीज थिनली बिफोर पुटिंग इट ऑन द पिज़्ज़ा। सेकंड है स्मूथ एंड स्मूथली। अब स्मूथ का मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्ट से, बहुत उसको पोलाइटली, उसको बिल्कुल सीधे से अच्छे से स्प्रेड द टोमेटो पेस्ट स्मूथली ओवर द पिज़्ज़ा बेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मूथ वर्ब की जगह पे एडवर्ब काम कर रहा है, जो वर्ब होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमने स्मूथ के साथ एल वाई लगा दिया तो वो स्मूथली बन जाएगा, ठीक है, ओवर द pizza base. So also you have to solve the part B, question number 2, as you can see on the screen on your textbook. I hope after watching and listening this video you have cleared the all concepts of today's lesson.